Hello my dear students. Now we are going to do the question answers of the chapter The Child's Return Part 1 and Part 2. Now the first question is, why did Raicharan think he had two masters? Raicharan ऐसा क्यों सोचता था कि उसके दो स्वामी हैं? Before the marriage, अनुकूल was Raicharan's sole master. शादी से पहले जो अनुकूल था वो रायचरण का अकेला ही मालिक था. But after his marriage, Raicharan found that he had two masters. लेकिन उसकी शादी के बाद, अनुकूल की शादी के बाद रायचरण को लगा कि उसके दो मास्टर्स हैं, अनुकूल and his son, अनुकूल और उसका बेटा. Question number 2. What would the child do when Raicharan went to catch him? जब रायचरण बच्चे को पकड़ने जाता तो वो क्या करता था? The child would laugh and try to run away. वो हंसता और भाग जाता when Raicharan went to catch him, जब रायचरण उसको पकड़ने जाता. Question number 3. What would Raicharan do to entertain the child? बच्चे को उसका मनोरंजन करने के लिए रायचरण जो था वो क्या करता था? Raicharan would entertain the child by playing a funny horse game for him. वो उसके साथ एक मजेदार घोड़े वाली गेम खेला करता था. Question number 4. What did Raicharan tell child before he went to pick flowers? फूल तोड़ने जाने से पहले रायचरण जो था उसने बच्चे से क्या कहा? He told child not to go near the water. उसने बच्चे को बोला कि वो पानी के नज़दीक बिल्कुल ना जाए. Now question number 5. What did Raicharan find when he returned after picking the flowers? जब उसने वो फूल तोड़ने के लिए गया तो जब वो वापस आया वहाँ से तो उसने क्या देखा? When Raicharan returned, he found go-kart empty. उसने देखा कि वो बच्चे की जो छोटी सी बच्चा गाड़ी थी वो तो खाली थी. It was empty and the child was missing. और बच्चा जो था वो वहाँ पे नहीं था. Question number 6. How did Raicharan react when he found the child nowhere? उसने कैसे रिएक्ट किया जब उसको बच्चा कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया? Raicharan was at the wit's end. वो मानो कि उसके होश ही उड़ गए. And his blood froze within him. उसका खून जो था वो अंदर से जम गया. Question number 7. Do you think Anukul's wife is right in blaming Raicharan? क्या आपको लगता है कि जो अनुकूल की पत्नी थी उसने रायचरण को दोषी ठहराया वो इसके लिए सही थी? No, she is not right in blaming Raicharan. वो बिल्कुल ठीक नहीं थी रायचरण को ब्लेम करने में. He has always been faithful to him क्योंकि वो हमेशा ही उनके लिए बहुत उनके प्रति वफादार रहा है. Do you think अनुकूल also agreed with his wife? आपको लगता है कि अनुकूल जो था उसको उसके विचार से वो सहमत था? No, अनुकूल did not agree with his wife. He held that Raicharan could never do such a wicked thing. उसने कहा नहीं रायचरण ऐसा कभी नहीं कर सकता, ये बहुत ही बुरी चीज़ है. Now my dear students, we are going to do the question answers of Child's Return Part 2. First question is, what happened to Raicharan's wife after the birth of a son? बच्चे के जन्म के बाद रायचरण की वाइफ को क्या हुआ? Raicharan's wife died after the birth of the son. उसकी जो वाइफ थी बच्चे को जन्म देते ही मर गई. Question number 2. What were the feelings of Raicharan soon after the birth of baby? बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसकी क्या फीलिंग्स थी, उसके मन में क्या विचार थे? Raicharan had a strange suspicion. उसको एक विचित्र सी शंका थी, एक शक था क्या? That the baby had come to take the place of little master. ये छोटा जो बच्चा आया है वो उसके उस मालिक की जगह लेने के लिए आया है. Question number 3. Why did Raicharan believe that little master had been reborn in his home? उसको ये क्यों विश्वास था कि जो उसके जो छोटा स्वामी था, छोटा उसका मास्टर था, उसने दोबारा यहाँ पे जन्म लिया है. The new baby was born soon after little master's death. Actually उस जो उनका जो छोटा मालिक था, वो छोटा बच्चा था, उसकी डेथ के कुछ ही महीने के बाद इस बच्चे का जन्म हुआ था. And he walked and talked just like Raicharan's little master. वो बिल्कुल ही चलता था, बोलता था उस छोटे मालिक की तरह. Question number 4. Why did Raicharan himself live in handful of rice? रायचरण जो खुद था वो क्यों मुट्ठी भर चावलों के ऊपर अपना गुजारा करता था? Raicharan spent all his wages on giving the best education, the best clothes, the best food to child. Therefore, he himself lives
on the handful of rice. Actually वो अपनी जितनी भी उसकी सैलरी थी, जितना भी उसका वेतन था, वो बच्चे की बढ़िया शिक्षा, बढ़िया कपड़े और उसका अच्छा भोजन, बढ़िया भोजन इसके ऊपर खर्च कर देता था, जिस वजह से उसका अपना जो गुजारा था वो मुट्ठी भर चावलों पर ही होता था। क्वेश्चन नंबर 5, Why was रायचरण's new employee unhappy with him? रायचरण के जो नए एम्प्लॉयज थे, उनके जो नए मालिक थे, वो इससे इतने खुश क्यों नहीं थे? रायचरण had grown weaker in body. Actually उसकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी and he grew weaker in body. उसकी बॉडी भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी. He was no longer able to do his duty. अब वो डेली अपनी इतनी अच्छे से ड्यूटी नहीं कर पाता था. Therefore his employer were unhappy with him. इसलिए उसके जो एम्प्लॉयज, उसका मालिक जो था, उसके साथ हमेशा ही नाराज रहता था। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड अनुकूल्स वाइफ रिएक्ट व्हेन रायचरण ब्रॉट फेलिना टू हर हाउस? अनुकूल की जो वाइफ थी वो उसने कैसे रिएक्ट किया जबकि वो उसको उसके घर लेके आया, अनुकूल के घर। अनुकूल्स वाइफ टुक फेलिना ऑन हर नी, उसने उसको जल्दी से अपने घुटनों पर बिठा लिया एंड शी वॉज वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, वो इतनी उत्तेजित हो गई अपने बच्चे को, उस बच्चे को देखकर, दैट लाफिंग, क्राइंग, टचिंग हिम एंड किसिंग हर हेयर, उसने उसको देख के हंसी, उसको टच किया, उसको प्यार किया, उसको हग किया और उसको उसके बालों को चूमा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड अनुकूल थिंक दैट इट वाज वाइजर टू बिलीव दैट फेलिना वाज हिज सन? अनुकूल ने ये क्यों सोचा कि फेलिना को पुत्र स्वीकार करने में ही उनकी बुद्धिमत्ता है? ये उसने कैसा क्यों कहा? अनुकूल सॉ हाउ ईगरली हिज वाइफ clung to that boy. उसने देखा कि उसकी वाइफ ने उसको कितने जोर से पकड़ लिया है, उसको कितने अच्छे से उसको हग किया, उसके साथ लिपटी पड़ी है। Therefore he thought that it was wiser to believe that Felina was his son. इसलिए उसने ये सोचा कि फेलिना को पुत्र स्वीकार करने में ही उसकी समझदारी है। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड रायचरण गो व्हेन ही वाज नॉट अलाउड टू स्टे इन अनुकूल्स हाउस? तो जब ये रायचरण कहाँ चला गया जब अनुकूल ने उसको उसके घर में स्टे करने के लिए मना कर दिया? रायचरण वेंट टू अनुकूल्स हाउस एंड वाज लॉस्ट अमंग द नंबरलेस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और बहुत सारे ऐसे बेनाम लोग हैं, उनकी भीड़ में वो खो गए। So my dear student, these were the question answers of both chapters. Hope you understood it very nicely. And now the back exercise of this chapter, I am going to give the link in description, so you can do from there. And we will meet soon with our next video. Till then, it's a time to say bye bye.